देरी हो सकती है, मसीह में देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती, हार नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं आप ध्यान पूर्वक जब वचन पढ़ते हो, आई वॉन्ट यू टू केयरफुली ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ जीसस. Do you think he lived a defeated life or he lived a victorious life? Do you think he had challenges? Challenges don't mean defeat. आपको चैलेंज हो सकता है, सताव हो सकता है और होगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पे there will be tribulations. He said but be off. He said but you know what? Get a little sad. He said be off. हिंदी में क्या लिखा है? मगर ढाढ़स बांधो. You should have a cheerful attitude. That means rejoicing in the time of adversity. Be of good cheer, for I have overcome the world. Bolo, there is no defeat for me. I am more than an overcomer in Christ Jesus. आप जानते हैं मैं जब जाता हूँ, मैं कई विश्वासियों से मिलता हूँ. There are very few people I have found which has a victorious mindset. जय की मानसिकता बहुत कम मसीहों में है. They are caught up to what they are suffering, what they are going through right now. अगर किसी पेंटिंग को आप बहुत पास से खड़े होकर देखोगे ना, you will not get the entire picture. You need to go some steps back. थोड़ा पीछे जाके you have to see the entire picture. कई लोग जो कर्जों में हैं इस समय पूरे दिमाग में कर्जे ही कर्जे हैं. वो कर्जों की बातें करते हैं, सुबह उठते हैं तो कर्जों के बारे में सोचते हैं. कोई लोग जो बीमार हैं, they are consumed with their sickness and they are not able to see the bigger picture. You have to take few steps back. थोड़ा कदम पीछे लाके see the bigger picture. Jesus said, "Be of good cheer, for I have overcome the world." मगर सवाल यह है, यीशु मसीह आपने जय पाली तो मैं क्या करूं? You overcame. What about me? And he wants to tell you, but I live in you now. एक दुनिया का सबसे बेहतरीन एथलीट है, स्विमर है, माइकल फेल्प्स. माइकल फेल्प्स, राइट? माइकल फेल्प्स, या माइकल फेल्प्स. सोचो माइकल फेल्प्स किसी के अंदर रहने लग जाए. जस्ट एन एग्जाम्पल. माइकल फेल्प्स किसी के अंदर घुस जाए, क्या वो अच्छी स्विमिंग कर पाएगा? अगर सचिन तेंदुलकर किसी के अंदर आ जाए तो क्या वो अच्छी बैटिंग कर पाएगा? तो ये उदाहरण तो कुछ भी नहीं, मगर जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो आदि और अंत है, जो पहला और अंतिम है, whose name is victory, he now lives in you. Do you not think that he will teach you how to come out of every situation victorious? क्या आपको नहीं लगता अब वो आपको सिखाएगा हर परिस्थिति में तू कैसे जयवंत हो सकता है? The word of God says he leads us in triumph in all times, not sometimes, not in seasons. वो हमें मसीह के जय उत्सव में, the word there is victory celebration. आपने देखा कई शादियां कहीं होती है, वहाँ पे एक दिन का रिसेप्शन होता है. कई लोग हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, पर कई कल्चर्स हैं जहाँ पे हफ्ते हफ्ते सेलिब्रेशन होता है, हफ्ते भी होता है. जो मसीह की विक्ट्री है वो अब से लेकर अनंत तक हमारी लाइफ एक सेलिब्रेशन है. That means 100 years from now you will be celebrating his victory. अब से 100 साल बाद आप उसकी जय मना रहे होगे. 1000 years from now you will be celebrating his victory. 1000 साल अब से आप उसकी जय मना रहे होगे. 1,000,000 years from now you will be celebrating his victory. 1,000,000,000 years from now you will be celebrating his victory. बोलो अब तो जय उत्सव ही जय उत्सव है. Your sufferings are temporary. The celebration is eternal. The devil wants you to focus on what you're going through right now. शैतान चाहता है आपका पूरा ध्यान उस जगह पे डाले जो आप जिसके थ्रू अभी जा रहे हो. God wants you. Apostle Paul says these light afflictions are nothing compared to the glory that will be manifested in. ये थोड़े समय के दुख, बोलो थोड़े समय के,
पार्टी है अनंत तक, दुख है बहुत थोड़े समय के. You need to focus on the right place, at the right thing. Amen. Celebration is not something we do. Celebration is something we are. We have been invited into this feast, this marriage feast. Amen. और ये celebration अब कभी बंद नहीं होगा. तो आदत डाल लो. कुछ मसीह लोग, they don't know how to celebrate. They get uncomfortable when people are dancing around it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You need to shake yourself. यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम छोटे बच्चों की तरह नहीं बदल जाओगे, तुम मेरे राज्य की सच्चाइयों को नहीं देख सकते. Until you are transformed like little children, the heaven's realities will be shut up from you, because you don't know heaven by reading books. स्वर्ग किताबें पढ़ के नहीं उसकी सच्चाई पता चलती. You have to become like little children. छोटे बच्चों की तरह जिस दिन बन जाओगे, the revelation will open up. Amen. Anyway, आज का वचन भी जरूरी है देना. कितने लोग अपना हथियार लेकर आए हैं? उठा लें उसे. जो लोग नहीं लाए हैं, अगले हफ्ते ले आए. Amen. ओके. और अब हम घोषणाएं करेंगे वचन से पहले. रेडी? और कैसे घोषणा करनी है कि आपके शरीर का एक एक सेल घोषणा करे. Amen. ओके, मेरे पीछे बोलो. मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन का पूरे दिल से आदर करूंगा. मैं हर एक विचार, परंपरा और भावना और अनुभव से बढ़कर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का सर्वोच्च अधिकार मानूंगा. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हृदय उत्तम भूमि है. मैं परमेश्वर के वचन को नम्रता, विश्वास और बड़ी भूख के साथ ग्रहण करता हूं. मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे समझ की आंखों को खोल रहा है. मेरा कान वचन सुनने के लिए खुला है. मेरा हृदय वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है. और मेरा मन परमेश्वर के सत्य से नया किया जाता है. मैं घोषणा करता हूं कि आज परमेश्वर ने जो भी वचन विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया है, उसका एक भी शब्द मैं नहीं चूकूंगा. प्रत्येक वचन जो आज परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है, वह मेरे जीवन में प्रवेश करेगा और अपने उद्देश्य को पूरा करेगा. मैं घोषणा करता हूं कि शैतान मेरे हृदय में बोए गए परमेश्वर के वचन को नहीं चुरा पाएगा. मेरा ध्यान भटकाने, मुझे धोखा देने, मेरे हृदय को कठोर बनाने या वचन को मुझसे छीन लेने की उसकी हर योजना आज यीशु के सामर्थी नाम में निष्फल हो जाती है. परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में गहरी जड़ पकड़ता है और 30, 60 और 100 गुना फल उत्पन्न करता है. मैं घोषणा करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी,
अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं। और जब ये वचन आज मेरे हृदय में प्रवेश करेगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरे जीवन के द्वारा मेरे परमेश्वर की महान महिमा होती है। यीशु के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं। और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। आमेन। अब आपने घोषणा करी है, अब नाउ यू हैव टू हियर द वर्ड लाइक दैट। आमेन। ओके, सो आज तीसरा भाग है। हम लोग गलातियों की पुस्तक से सीख रहे हैं, द बुक ऑफ गलेशियंस। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया, उसके पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया कि सुसमाचार क्या है। कम ऑन, टॉक टू मी। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? इफ गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड, अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो वो है, तो इसका मतलब अगर मुझे सुसमाचार नहीं समझ में आता तो मैं उसकी सामर्थ से भी के बिना अपना जीवन जीऊंगा। एंड ऑल आई विल डू इज आई विल बेग। इसीलिए पौलुस प्रेरित की हम ये जर्नी को देख रहे हैं और हम इतना कुछ सीख रहे हैं। हाउ ही जेलसली गार्डेड द गॉस्पेल, कैसे उसने जलन से इस सुसमाचार को क्या किया, इसकी रक्षा करी कि ताकि इसमें क्या ना हो जाए, इसमें मिलावट ना हो जाए। क्योंकि कुछ लोग, some Judaizers came to dilute, not dilute, but to defile the gospel. कुछ यहूदी मत वाले सुसमाचार को क्या करने आ गए थे? मिलावट करने के लिए, उसको खराब करने के लिए आ गए थे। और पौलुस उस हियाव को रखता था कि यरूशलेम में जो काउंसिल थी प्रेरितों की, those who are of reputation, जो बहुत माने जाते थे, मगर उनके सामने भी वो हियाव से खड़ा रहा। आमेन। और इससे हम एक चीज सीखते हैं कि हमें भी सुसमाचार को क्या करने की जरूरत है? अपने हृदय से। डोंट अलाउ मिक्सचर टू एंटर इनटू द गॉस्पेल दैट यू हैव रिसीव्ड। अब आप देखोगे हर 6 महीने में एक नई टीचिंग आती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। अब बोलते नहीं नहीं, आपको कोर्ट ऑफ हेवन में जाना पड़ेगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टीचिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस विल नेवर बी इनफ। वरना यीशु का बलिदान काफी नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि जो यीशु ने किया पूरा नहीं था, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्वर्ग की कचहरी में जाके खड़ा होना पड़ेगा, आपको पिता से मांगना पड़ेगा अपने पापों की क्षमा। और इसी के लिए पौलुस ने क्या किया? उस लड़ाई को लड़ा। और आज इसीलिए गैलेशियंस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल। वो पवित्रता, शुद्धता की बात करती है सुसमाचार की। क्योंकि अगर आप सुसमाचार में स्थापित नहीं हो, कोई भी आकर उसमें मिलावट मिला देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। If you don't know the real gospel, how would you know if somebody comes and adds to it? अगर आपको नहीं पता कि असली सुसमाचार क्या है, आपको नहीं पता चलेगा, कोई आकर उसमें क्या कर देगा, अगर मिलावट कर देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। And it's the small foxes that spoil the crop. छोटी लोमड़ियां हैं, वचन कहता है। It's not big things, it's the small things. क्यों आज भी इतने मसीह लोग बंधन में जी रहे हैं? क्यों आज दिस वे? आप जानते हैं जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे प्रेरितों के कार्य में, they were known as the way. I love this word.
much better than Christians. Because the word Christian has been diluted so much. वो जो मार्ग के लोग थे, the people of the way, आज क्यों ऐसा है कि it has just become another religion. Christianity is classified as another religion. आज मसीहत भी एक और धर्म बन गया, और इससे ज़्यादा दुख की और कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु धर्म के बंधन से ही तो हमें छुड़ाने के लिए आया था. He came to set us free from the religious system, the old Mosaic religious system. और यही गलातियों ने गलती करी. The believers in the churches of Galatia, जो विश्वासी गलातियों की कलीसियाओं में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही गलती करी. और गलती क्या थी? कि वो विश्वास करने लग गए उन लोगों पर जो आकर सुसमाचार में मिलावट मिलाने लग गए. कि मसीह, केवल मसीह के विश्वास करने से तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नहीं, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, तुम्हें सारे पर्व भी मानने पड़ेंगे, तुम्हें मूसा की रीति रिवाज में चलना पड़ेगा. हाँ. The believers in the churches of Galatia, जो विश्वासी गलातियों की कलीसियाओं में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही गलती करी.